خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين فخر الأولين والآخرين أحمد الحامدين محمد المحمودين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد هزار جان مقدس ترافدا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. تمام حضرات ادب و احترام محبت و پیار کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کا نذرانہ درود و سلام کی صورت میں پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی سورہ حج سے آیہ مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر اور سرکار کی سیرت پاک پر عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. میں نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے. قربانی کے جانور یہ میری نشانیاں ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. ان جانوروں کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا.
پھر جب انہیں پہلو کے بل لٹا لو فَكُلُوا مِنْهَا تو اس سے کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو قناعت کرتے ہیں اور سوال نہیں کرتے، وَالْمُعْتَرَ اور ان کو بھی کھلاؤ جو سوال کرتے ہیں، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی تکبیر پڑھو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور نیک لوگوں کو اے مصطفیٰ خوشخبری سنا دو۔ اس آیہ مبارکہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور اس جانور کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اس جانور کا احترام کرو کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اور اگر اونٹ ہو تو اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں بائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ کر کھڑے کھڑے ہی اسے ذبح کر دو، اور پھر آگے یہ بیان فرمایا کہ اسے کھانا کیسے ہے، فرمایا خود بھی کھاؤ اور اپنے دیندار دوستوں کو بھی کھلاؤ اور جو عام لوگ مانگتے پھرتے ہیں ان کو بھی کھلا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور موٹا کرو، اسے خوب کھلاؤ پلاؤ، کیوں؟ کل پرسرات پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، تو جو چاہے جتنی اپنی سواری کو مضبوط کر لے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانیاں کرو، کیوں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے یہ حجۃ الوداع کا دن بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ دن محترم ہے کہ جمعۃ المبارک ہے۔ فلسفہ قربانی تو میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا، لیکن قربانی کے مسائل میں بیان کر دیتا ہوں جن سے واقف ہونا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں دینیات کی توجہ لوگوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اس خاص موقع پر بھی کبھی کبھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ پہلا تو مسئلہ تکبیرات تشریق کا ہے کہ تکبیر تشریق کون کہے اور کب شروع کرے اور کتنے دن کہے، صرف امام کہے یا مقتدی بھی کہے، اکیلا نماز پڑھنے والا کہے یا نہ کہے، اور عورت جب نماز پڑھے تو اسے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ تکبیر تشریق ان لفظوں کا نام ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک یہ ورد ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی نماز پر امام بھول جائے اور تکبیر تشریق نہ کہہ سکے، مقتدی کو چاہیے اونچی آواز سے تکبیر تشریق شروع کر دے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا تکبیر تشریق کہے یا نہ کہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں اسے کہنا ضروری ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ احتیاطاً اکیلے بھی نماز پڑھے تو تکبیر تشریق کہنی چاہیے،
इसी तरह औरत जो है वो भी तकबीर तशरीक पढ़े हर नमाज के साथ, लेकिन वो आहिस्ता पढ़े, ऊंची आवाज से औरत तकबीर तशरीक नहीं पढ़ सकती। अब रहा कुर्बानी के जानवरों का मसला, तो कुर्बानी के जानवर 6 किस्म के हैं। ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, दुम्बा और छतरा। ये ऊंट जो जानवर है कुर्बानी का, इसकी उम्र कम अज कम 5 साल हो, और भैंस गाय की उम्र कम अज कम 2 साल, बकरे की उम्र कम अज कम 1 साल, और छतरा 1 साल का जरूरी है, दुम्बा। लेकिन अगर इतना बड़ा हो 6 माह का कि वो 1 साल के बकरे के बराबर नजर आए, तो वो भी दुम्बा कुर्बानी पर लगाया जा सकता है। बाज देहातों के अंदर ये मशहूर है कि भेड़ का बच्चा भी अगर 6 माह का हो और बड़ा महसूस हो, वो भी लग सकता है, ये नाजायज है। सिर्फ दुम्बा अगर 6 माह का साल के बकरे के बराबर महसूस हो तो वो कुर्बानी पर लग सकता है। भेड़ या बकरी जो है वो 6 माह की नहीं लग सकती। हाँ, एक सहाबी को नबी पाक ने इजाजत दी थी कि तू 6 महीने का बकरा ज़िबा कर सकता है। वो सिर्फ नबी पाक की खसूसियत थी, आम उम्मत के लिए उसकी इजाजत नहीं है। बाज देहातों में और बाज शहरों में यह मशहूर है, अगर जानवर दोंदा ना हो तो कुर्बानी नहीं होती। बाजे तो इमाम मस्जिदों के भी ये मसले करते हैं देहातों में, लेकिन ये मसला सही नहीं है। किसी भी जानवर का दोंदा होना कुर्बानी के अंदर मोतबर नहीं है। ऊंट हो या गाय, भैंस हो या बकरी, दुम्बा हो या छतरा, इन तमाम जानवरों में साल मोतबर है, दोंदा होना मोतबर नहीं है। ऊंट अगर 5 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। भैंस या गाय अगर 2 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। अगर दुम्बा या बकरा, हाँ बकरा 1 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। खा दोंदा क्या, वो 3 दांत भी ना रखता। एक बकरा है, उसके 3 दांत निकल आए हैं या टूट गए हैं, तो ये कोई शरीयत में मोतबर नहीं है। शरीयत में उम्र एतबार की जाएगी कि ऊंट की इतनी उम्र हो, भैंस की इतनी उम्र हो, तो ये कुर्बानी पर लग सकते हैं। कुर्बानी कौन करेगा? कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास निसाब हो, जिसके पास निसाब हो। निसाब किसे कहते हैं? या तो 7.5 तोले सोना हो और या 52 तोले चांदी हो। ज़कात में भी यही निसाब है और कुर्बानी के दौरान भी यही निसाब है, लेकिन ये फर्क है कि ज़कात उस वक्त वाजिब होगी वो माल बढ़ता हो, वो माल तिजारत का हो, यानी आगे बढ़ रहा हो और उस पर पूरा साल भी गुजर जाए। लेकिन कुर्बानी में ये जरूरी नहीं है। जिसके पास 52 तोले चांदी के पैसे होंगे या 7.5 तोले सोने के पैसे होंगे या कोई और प्रॉपर्टी है, घर में कोई गाड़ी है, कोई और चीज है, अगर उसकी कीमत 52 तोले चांदी को पहुंचती है या 7.5 तोले सोने को पहुंचती है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। उसमें यह जरूरी नहीं है कि वो तिजारत का हो, बढ़ने वाला हो या उस पर साल भी गुजरे, उस पर कुर्बानी जरूरी है। अब एक ऐसा शख्स है जिसके पास न तो 7.5 तोले सोना है और न ही 52 तोले चांदी है, लेकिन उसने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया। उसके पास इतने पैसे हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीद ले। उसने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया। अब उसने मसला पूछा कि मुझ पर कुर्बानी जरूरी है या नहीं। अब मसले की रूह से उस पर कुर्बानी जरूरी ना थी, लेकिन चूंकि उसने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है, अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो गया। अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो गया है। इसी तरह बाज सुलझे लोग और दीन से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनका यह तरीका होता है कि वो जानवर खरीद लेते हैं और खानदान में जो गरीब होते हैं उन्हें दे देते हैं। मसलन अमीर भाई ने एक जानवर खरीदा और बहन को दे दिया कि ये तुम्हारी कुर्बानी है। अब बहन ये नहीं कर सकती कि उस जानवर को ज़िबा कर दे या बेच दे और उसका गोश्त जो है वो
अपने ज़रूरत के अंदर इस्तेमाल करे, नहीं, अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, खा वो कुर्बानी की ताकत ना भी रखती हो, क्योंकि उसको कुर्बानी का जानवर दे दिया गया है। अब ये नहीं है कि वो कुर्बानी ना करे या कह दे भी अगले साल करूंगी या कोई और बहाना, उसके लिए इसकी कतई इजाजत नहीं है। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि उन पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो खुद कुर्बानी नहीं करते, बल्कि ये नजरिया बना लेते हैं कि इस दफा मैं मां की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं, और बाद इस तरह करते हैं कि मैं अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं, और बाद कहते हैं मैं अपनी फौजशुदा बहन की तरफ से कर रहा हूं, और बाद कहते हैं मैं अपने भाई की तरफ। अलगर्ज किसी के नाम की भी कुर्बानी करनी हो, ये उस वक्त हो सकता है जब पहले अपनी तरफ से कुर्बानी दे, क्योंकि उस पर तो फर्ज है ना। ये तो ऐसे है कि एक आदमी मर रहा है और उस पर कर्जा है, अब वो पूछ रहा है रिश्तेदारों से, तुम्हारा कोई कर्जा है मैं उसको अदा कर दूं, तो मैं कोई जरूरत है मैं उसको पूरा कर दूं। अब गैरों की जरूरतें पूरी कर रहा है और अपने ऊपर कर्जा है, खुद मर रहा है। नबी पाक फरमाते हैं जो मकरूज होकर मरेगा वो मेरे सामने ही ना आए, वो मेरा उम्मती नहीं है, एक रिवायत में है वो हमारे में से ही नहीं है। तो जैसे मरने वाला जरूरी है कि पहले अपना कर्जा अदा करे फिर बाकियों की वसीयतें करे, इसी तरह अगर कोई आदमी गैर की तरफ से कुर्बानी देना चाहता है तो वो पहले अपनी कुर्बानी करे, अपनी करने के बाद फिर जिसकी मर्जी आए कर ले। किस किस की कुर्बानी कर सकता है? सबकी तरफ से कर सकता है, बशर्ते के जिसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है वो मुसलमान हो। जिस आदमी को अल्लाह ने तौफीक बख्शी हो कि अपनी कुर्बानी के अलावा भी वो कुर्बानी कर सकता है, उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि वो कुर्बानी हम सब के आका और मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दे, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा की तरफ से दे, इमाम हसन इमाम हुसैन की तरफ से दे, और हजरात खुलफाए राशिदीन की तरफ से दे। ये सबसे बेहतर है। इसके बाद बहन है, भाई है, दीगर अजीज व अकारिब है, उनकी तरफ से भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन उसकी तफसील मैंने आपको बता दी। पहले जो है वो अपनी कुर्बानी दे। अच्छा, बाज जगह ये रिवाज है, भैंस खरीदी, उनमें एक आदमी इस नियत से हिस्सा रख लेता है कि गोश्त आएगा मैं उसे फ्रीजर में रख लूंगा फिर इस्तेमाल करता रहूंगा। अगर ऐसा किया गया तो किसी की कुर्बानी भी अदा नहीं होगी। हाँ, वो कुर्बानी की नियत करे, उसके बाद फिर चाहे तो सारा गोश्त फ्रीजर में रख ले, सिर्फ नियत का फर्क है। नियत कुर्बानी की करे, ये नियत ना करे कि गोश्त लूंगा और फ्रीजर में रख लूंगा, नहीं, कुर्बानी की नियत करे, फिर उसको इजाजत है टीवी से करके तकसीम ना करे, सारा का सारा गोश्त ही अपने इस्तेमाल में लाए। लेकिन ये सिर्फ इजाजत है, सुन्नत और सवाब इसमें है कि आदमी गोश्त के 3 हिस्से करे, एक अजीजो अकारिब के लिए, एक अपने दोस्त अहबाब के लिए और एक अपने अहलो अयाल के लिए रखे। अच्छा, बास जगह पर यह रिवाज भी पाया जाता है कि कुर्बानी करते हैं, मसलन बड़ा जानवर है, गाय है या भैंस है, 6 तो हिस्सेदार बन गए। अब उन 6 हिस्सेदारों में 4 सगे भाई हैं या 3 सगे भाई हैं या 2 सगे भाई हैं। वो कहते हैं कि एक हिस्सा जो 7वां बच रहा है, क्यों ना हम 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई पैसे मिलाकर अपने वालिद की तरफ से ही हिस्सा रख ले। ये तरीका नाजायज है। हाँ, अगर वालिद की तरफ से भाइयों ने हिस्सा रखना हो तो उसकी सूरत यह है कि सारे भाई एक भाई को पैसे दे दे। मसलन 4 भाई हैं और 1000 का हिस्सा है, 250 रुपए 3 भाई उसको दे दे और कहें कि 250 तू पाकर वालिद की तरफ से हम तुझे इजाजत देते हैं एक हिस्सा रख ले। ये तो जायज है। अगर तीनों 250 जमा करवाते हैं ये नाजायज है। एक आदमी वालिद की तरफ से हिस्सा जो है वो रख सकता है। अच्छा, एक गरीब आदमी था, उसे कुर्बानी की ताकत ही नहीं है, उसने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद किसी ने उसे कहा, मियां तू गरीब आदमी है, अगर तू ये जानवर बेचे 5000 का और 3000 का खरीद करके कुर्बानी कर दे, तुझ पर जरूरी तो नहीं है कुर्बानी करना, और 2000 तेरे काम आ जाएगा, क्या इसकी इजाजत है? हाँ, इजाजत है, लेकिन यह तरीका बेहतर नहीं है। सवाब इसी में है कि गरीब आदमी जो जानवर खरीद चुका है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, अल्लाह अपने हबीब के सदके और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सदके रोजी में बरकत अता फरमा दे। यह तरीका नाजायज है। हाँ,
इजाजत है, बेहतर यही है कि उसी को कुर्बानी कर दे। लेकिन अगर अमीर आदमी है, ताकतवर है, उसके पास पैसे हैं, उसके लिए इस तरह की कोई इजाजत नहीं है, बल्कि जो जानवर उसने खरीदा है वही जानवर ही कुर्बानी करेगा। भैंस के एक थन से दूध नहीं आता, क्या कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? कि भैंस के 4 थन, 4 ही उज़्व हैं अलग अलग, एक पिस्तान उज़्व नहीं है। भैंस के जो थन हैं चारों अलग अलग आज़ा हैं, और एक आज़ा, एक उज़्व, उसका अगर तीसरा हिस्सा खराब है, जला सड़ा हुआ है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर पूरा उज़्व नाकारा है या आधा उज़्व नाकिस है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। मसलन बकरी का कान आधा कटा हुआ है तो कुर्बानी पे नहीं लग सकती। भैंस का थन पूरा मारा हुआ है, वो कुर्बानी पे नहीं लग सकती। एक जानवर की पूरी पिंडली या एक पांव पूरा ही नहीं है, वो कुर्बानी पे नहीं लग सकता। अंधा है, वो कुर्बानी पर नहीं लग सकता। सींग पैदाइशी तौर पर ना हो, वो भी लग सकता है। पहले तो थे लेकिन बाद में चोट लगी और सींग निकल गया, एक निकल गया या दोनों निकल गए, इनकी भी कुर्बानी हो सकती है। हाँ, अगर सींग निकला और इतनी चोट सख्त लगी कि उसकी तकलीफ दिमाग को पहुंची और उस जानवर का दिमाग भी मुतासिर हुआ, तो ऐसे टूटे सींग वाले जानवर की कुर्बानी नाजायज है। हाँ, अगर दिमाग को तकलीफ न हो सींग के टूटने से, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज है। कुर्बानी के जानवर को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो खूबसूरत खरीदना चाहिए और जल्दी खरीदना चाहिए। क्यों? देर से खरीदना जायज है, लेकिन इसमें फिर ये आ जाता है कि मजबूर होकर खरीद रहा है, क्योंकि खुशी नहीं है। खुशी हो तो आदमी जल्दी जल्दी एहतमाम करे। जितना खुशी से और जल्दी से जानवर खरीदेगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता फरमाएगा। अब जानवर को ज़िबा करने का तरीका क्या है और कौन ज़िबा करे? सबसे बेहतर तो ये है कि जानवर खुद मालिक ज़िबा करे। जिस तरह कोई मर जाए तो उसका वारिस खुद जनाजा पढ़ाए, इसी तरह कुर्बानी का जानवर भी सबसे बेहतर ये है कि आदमी तरीका सीख ले और खुद ज़िबा करे। लेकिन ये भी याद रखे, अगर मालिक शरीयत का पाबंद नहीं है और कोई आदमी पाबंद शरीयत पास मौजूद है, तो फिर उसे कह दे कि मियां तू इसको ज़िबा कर, हाँ वो ज़िबा करना जानता भी है। ज़िबा कैसे करे? जानवर को किबला शरीफ की तरफ लिटाए। क्यों? कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को किबला शरीफ की तरफ मुंह करके लिटाया था। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके लिटाए और किसी जानवर के सामने ना लिटाए, क्योंकि उसको तकलीफ होगी उस जानवर को। यह मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत है। आज यूरोपियन ममालिक इस्लाम पर तान और तशरीह करते हैं कि मुसलमान वाशी है, जिहाद के नाम पर कत्लेआम करते हैं, लेकिन कुर्बानी ने बताया कि अगर किसी दीन में रहमत है, किसी दीन में मोहब्बत है, किसी दीन में शफकत है, किसी दीन में उल्फत है, किसी दीन में एहसास है, वो सिर्फ दीन इस्लाम है। इतना एहसास है कि एक बेजुबान जानवर का भी एहसास किया जाता है कि जानवर को उसके सामने ज़िबा न करो ताकि उसके दिल को तकलीफ न हो। जिस मोहम्मद अरबी ने एक जानवर का तकलीफ दे होना बर्दाश्त न किया, वो एक इंसान को कैसे तकलीफ दे सकते हैं या उसे तकलीफ देने का कैसे हुक्म कर सकते हैं? सुन्नत यह है कि सामने कोई जानवर मौजूद ना हो और छुरी भी उस जानवर के सामने तेज ना की जाए। किबला रुख लिटाकर ये दुआ मांगी जाए, इन्नी तवज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, अल्लाहुम्मा तकब्बलहु मिन्नी कमा तकब्बलता मिन हबीबे का मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन खलीले का इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि आए अल्लाह, कबूल कर ले ये कुर्बानी मुझसे जिस तरह तूने कबूल कर ली थी अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा से, और जिस तरह तूने कबूल की अपने खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह से। ये दुआ मांगी। अगर अल्फाज याद ना भी हो, इनका माना भी अदा कर सकता है, लेकिन जबान से बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। हमारे इमाम के नजदीक अगर किसी ने जानबूझकर बिस्मिल्लाह तर्क कर दी तो जानवर का ज़िबा ये नाजायज है। इमाम शाफी के नजदीक तो सिरे से है ही हराम, हमारे इमाम के नजदीक हराम तो नहीं है लेकिन ये नाजायज है।
अब ज़िबा कर लिया तो ज़िबा कैसे करे? सर की तरफ, गर्दन ज्यादा लंबी ना बचाए, सर की तरफ काटे जितना हो सके, और जब 4 रगें कट जाएं तो मजीद छुरी न चलाए। बाज लोग रगें कट जाने के बाद भी छुरी चलाते रहते हैं, ये नाजायज है। फिर उसे छोड़ दे ताकि वो ठंडा हो जाए। जब तक वो ठंडा ना हो उसको गोश्त ना काटो। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद में फरमाया कि जो जानवर तड़प रहा था और उसका गोश्त काटा गया, वो गोश्त ऐसे है जैसे मुर्दार का गोश्त। अब जब जानवर ठंडा हो जाएगा तो फिर उस जानवर को तकसीम किया जाएगा। उसके 3 हिस्से बनाए जाएंगे, एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए, एक दोस्त अहबाब के लिए, और एक हिस्सा अपने घर के अंदर भी जरूरत में ला सकते हैं। अब अगर कोई आदमी जरूरतमंद है या बगैर जरूरतमंद है, मैंने पहले भी बता दिया कि पूरा गोश्त घर में रखना चाहे, पहले तो नाजायज था इस्लाम के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर ज़िबा करते रहते हैं। कुर्बानी का फलसफा ये है गरीब और नादारों की खिदमत करना। उमरा को चाहिए अपने घर में ज्यादा गोश्त ना रखे, बल्कि सवाब और बरकत समझकर वो गोश्त तनावुल फरमाए, और बाकी सब का सब उन्हें दे जिन्हें जिंदगी भर कभी गोश्त खाना नसीब ही नहीं होता। वो इस दिन के मुंतजर होते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इसलिए ये कुर्बानी दी ताकि उनको ये मौका मिल सके खाने का, और वो भी गोश्त जो अल्लाह की नेमत है खा सके। कुर्बानी वाले दिन कुछ सुन्नतें हैं, उनका लिहाज रखना जरूरी है। जो आदमी कुर्बानी करता है, कुर्बानी करने से पहले उसे खाना ना खाना सुन्नत है। खाना जो कुर्बानी कर रहा है, वो जिस पर कुर्बानी नहीं वो नहीं। मसलन घर में कुछ बच्चे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो खाना खा सकते हैं। इसी तरह वो अफराद जो मालिक नहीं है और कुर्बानी नहीं कर रहे, वो भी खाना खा सकते। नाखून तुरशवाए और बाल सुन्नत के मुताबिक साफ करवाए। हाँ, बाल सुन्नत के मुताबिक साफ करवाए। बाल जेरे नाफ हों या बगलों के बाल हों या चेहरे के बाल हों। लिबास पहने, सुन्नत यह है कि सफेद लिबास पहने, सफेद पहने और सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। खुशबू ऐसी लगाए जिसमें अल्कोहल मिक्स ना हो, अल्कोहल की आमेजिश ना हो। अगर अल्कोहल वाला इत्र लगाकर मस्जिद में आए तो फिर नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, यह मसला पक्का है और इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्कोहल से पाक जो खुशबू है वो इस्तेमाल करे और तकबीर तशरीक कहता हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल हो। लेकिन जहां रास्ते के अंदर गिलाजत हो, गंदगी हो, वहां बेहतर यह है कि तकबीर तशरीक न कहे, और जहां सफाई हो वहां तकबीर तशरीक कहता हुआ मस्जिद के अंदर आए और आकर खामोशी और अदब के साथ ईदगाह हो, मस्जिद हो, जहां भी हो बैठ जाए, और जब जाए तो रास्ता तब्दील करके जाए। नमाज जुमा और नमाज ईद में क्या फर्क है? नमाज जुमा और नमाज ईद में कोई फर्क नहीं। जिन पर जुमा फर्ज है उन पर ही ईद सुन्नत है, और जिन पर जुमा फर्ज नहीं उनके लिए ईद भी सुन्नत नहीं, बल्कि वो नफल पढ़े। देहातों में ईद जरूरी नहीं है। हाँ, जिन देहातों में जुमे शुरू हो चुके हैं वहां ईद भी पढ़ी जा सकती है, और जिन देहातों में जुमे नहीं हो रहे उन देहातों में ईद नहीं हो सकती। यह ऐसा मसला है जिससे अक्सर मौलवी ना सिर्फ नावाकिफ हैं बल्कि बाज पैसों और ईदी के लालच में ईद नमाज पढ़ाते हैं। उन्हें इस मसले का इल्म होना चाहिए। ईद वहां है जहां जुमा है, और जहां ईद नहीं, जुमा नहीं है, वहां पर ईद नहीं है। उनको चाहिए या शहर में आकर नमाज ईद अदा करें या वहां पर नफल पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने लिए दुआ मांगे और सरकार पर दरूद पाक पढ़े। नमाज ईद में और जुमा में फर्क यह है कि जुमा का खुतबा शर्त है, फर्ज है, और ईद का खुतबा सुन्नत है। नमाज जुमा का खुतबा बाद में है नमाज के, और नमाज ईद का जो खुतबा है वो पहले है। नमाज ईद का तरीका क्या है? हो सकता है मुझे कल ये बयान करने का मौका न मिले, मैं आपको आज ही बयान कर देता हूं। नमाज ईद का तरीका, नमाज ईद 2 रकात सुन्नत है। सुन्नत की नियत से नमाज ईद की नियत करे, दोनों हाथ कानों तक, कानों की लौ तक उठाए, उंगलियां किबला रखो और बांध ले। नाफ के नीचे सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद इमाम और मुक्तदी दोनों अपने हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कह के छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर कह के छोड़ दें, और फिर अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ बांध लें। इमाम किरत करेगा, 2 रकात पूरी हो जाएंगी। जब 2 रकातें पूरी हो जाएंगी
रकू में जाने से पहले तकबीर कहे हाथ छोड़ दे, फिर तकबीर कहे हाथ छोड़ दे, फिर तकबीर कहे हाथ छोड़ दे, और चौथी दफा बगैर हाथ उठाए तकबीर कहकर रकू के अंदर चला जाए। तो ये है तरीका नमाज ईद का। इसके बाद खुतबा है और वो इमाम का काम है। अब रहा कुर्बानी की खालों का मसला। तो कुर्बानी की खाल सदका करना जरूरी है। गोश्त में इजाजत थी, सारा अपने इस्तेमाल में लाए। कुर्बानी की खाल में भी ये इजाजत है, लेकिन अफजल ये है कि सदका कर दे। अपने इस्तेमाल में भी ला सकता है, मुसल्ला बना ले, उसको लोटा बना ले, वुजू का बर्तन बना ले, ये इजाजत है। लेकिन अफजल ये है कि मुस्तहिक लोगों को वो खाल तकसीम कर दे। बास जगह ये रिवाज है कि बेटियों को देते हैं, खा वो मुस्तहिक ना भी हो। एक तो ये नाजायज है। एक चकों में जिन मौलवियों की तनख्वाह नहीं होती उन्हें तनख्वाह के तौर पर खाल देते हैं, ये भी नाजायज है। इसमें इस्लाम की और इल्म की और एक मुस्तफा के वारिस मुसल्ले के इमाम की ये तौहीन है। वो खालों का मुस्तहिक नहीं है। आम हालात में उसकी तनख्वाह दी जाए और उसके बच्चों का जिम्मा लिया जाए। क्यों कि उसने तुम्हें मुसल्ला दी, तुमने उसे मुसल्ला दे रखा है, अपना इमाम बनाया हुआ है, जिसे तुमने अपने आगे खड़ा किया है, उसे हर मामले में अपने आगे रखो, खा वो तनख्वाह का मामला हो, खा वो रिहाइश का मामला हो। कुर्बानी की खाले तनख्वाह के तौर पर इमाम को देना ये नाजायज है। हाँ, वैसे इमाम को मुस्तहिक समझकर कि उसके अखराजात ही इतने ज्यादा हैं कि उसका गुजारा ही नहीं होता, मुस्तहिक समझकर जिस तरह बाकियों को देना जायज है, इस तरह उस इमाम को भी वो तनख्वाह देना जायज है। कुर्बानी 3 दिन की जा सकती है, 10 को, 11 को, 12 को, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि कुर्बानी 10 के दिन की जाए। एक बात, जिस जगह नमाज ईद नहीं होती वो लोग सुबह नमाज पढ़कर अपनी जानवर